श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एहो बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। वाहिगुरु साहिब जीओ। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी, कित दुआरे पाइए। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। हुक्म मनियो गुरु केरा, गावहु सच्ची बाणी। कह नानक सुनहो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। कह नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरु चरना विच जुड़ मिल बैठे हो। बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी का पाठ सत्कारयोग भाई साहब पासों आप जी ने श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण कीते हुए पावन बाणी आनंद साहिब की पवित्र 9वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने हुणे श्रवण किया है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बख्शिश की रहमत करते हैं। आओ अपने मन दीयां बरतियां नूं एकाग्र करके गुरु चरनां विच जुड़ना करिए। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बड़े प्यार दे नाल पावन बचन करते हैं। आओ संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। हे प्यारे संत जनों, आओ अते असीं रल मिल के उस अकथ की सिफत सलाह की जिहड़ी है वो गल करिए। अकथ जिहड़ा कथिया ना जा सके, कथन नहीं किया जा सकता। दुनिया के अंदर मनुख बेअंत चीज़ों नूं वंडदा है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ वंडदा है। तो इस संसार के अंदर पदार्थों की वंड होंदी है। कुछ मनुख पदार्थ प्राप्त करता है, कुछ किसी नूं देंदा है। इस तरह ही जगत के अंदर ज्ञान जिहड़ा है वो भी मनुख प्राप्त करता है ते उस ज्ञान नूं वंडदा भी है, ज्ञान नूं दूजे तक पहुँचाउंदा भी है। तो ज्ञान नूं दूजे तक अपनाउण दे बेअंत तरीके ने, अणगिणत ढंग ने। कोई किसी तरीके दे नाल, कोई किसी ढंग दे नाल इस ज्ञान नूं अगे वंड रहा है। एक तरीका यह भी है कहानी के रूप में।
ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਰਲ ਹੈ, ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਕਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ
करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे आइए। आओ आप रल मिल के उस अकथ की कहानी करिए, भाव उस अकथ के गुणा की गल करिए, उस अकथ प्रभु की सिफत सलाह करिए, उन्दियां गल्लां करिए, ताकि सानू पता लगे भी उन्होंने पाया किवें जा सकता है, उनकी प्राप्ति किवें होवेगी, वो अकाल पुरख परमात्मा प्रभु नाल मिलाप किवें होवेगा। आपां उस अकथ की कहानी करनी है, जिहड़ी अकथ की कहानी जिहड़ी है सुननी है, उनकी विचार करनी है, तां जो सानू उनके दर का पता लगे, उनके घर की सोझी होवे ते आपां उनकी प्राप्ति कर सकीए। करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। उस करते की कहानी अकथ की कहानी जिहड़ी है वो ये समझाती है, तत् भाव गुरु साहब समझाते ने भी जिहड़ा तन है, तन के नन्हे नूं सिहारी है, एक तन की गल की, एक शरीर की। जे नन्हे नूं सिहारी ना होंदी, खिमा करना थले औंकड़ ना होंदी, तां बहुत सारे शरीरों की गल, पर इत्थे थले नन्हे नूं औंकड़ लगी है, इस करके एक तन एक शरीर की गल। ते जे सिहारी लगी होंदी फिर शरीर विच कभी भी तुसी वेखो बाणी नूं पढ़न का भी कोई नियम है, जदों उसनूं आपां फॉलो करांगे फिर बड़ा आनंद आवेगा बाणी पढ़न का। हुण तन दे नन्हे नूं थल्ले मात्रा लगी, औंकड़ लगी, इहदा मतलब एक शरीर। ते जे इहदे उत्ते सिहारी लग जाए, छोटी दी मात्रा जिहनूं कहने फिर शरीर विच, ते जे ना सिहारी लगी हो ना औंकड़ लगी हो, फिर केवल तन, फिर बहुवचन बहुत सारे शरीर। गुरुदेव आखते ने तन मन नंदे नन्हे मन दे नन्हे नूं थल्ले औंकड़ लगी है, एक मन, एक शरीर, शरीर विच वसिया होया मन, धन, धन दे नन्हे नूं भी सिहारी लगी हुई है, धन। गुरुदेव आखते ने तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। तू अपना तन अते मन अते अपना धन, धन शब्द वास्ते वरतने मेरा धन, मेरी धन ते ना कहते, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पैसा, ये शब्द वरतते हैं। इस करके गुरुदेव ने धन के नन्हे भी औंकड़ लाई है। गुरुदेव आखते ने अपना तन अपना मन अपना धन अपने गुरु अगे सौंप दे। सौंपण का भाव की होता है? जदों आपां गुरु साहब अगे मत्था टेक के परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा करने का भाव की होता है? बहुत सारे सज्जन वेखा वेखी परिक्रमा भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, पर बहुतियां नूं इहदा भाव अर्थ नहीं पता होता भी इहदा मतलब की है। क्यों आपां परिक्रमा करते हैं गुरु साहब, मत्था क्यों टेकते हैं? पहली गल, गुरु साहब अगे मत्था टेकण का भाव यह होता है कि अपने अंदर जिहड़ी हौमे है, हौमे का त्याग करके गुरु साहब अगे झुकना भी तू समर्थ वड्डा है, मेरे विच इन्नी ताकत नहीं, इस करके मैं तेन नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हमेशा अपने तो वड्डे नूं कीती जाती है। समर्थ है गुरु, इस करके गुरु अगे आपां सीस झुका दिंदे हां। दूसरी गल, गुरु अगे आपां धन रखते हैं। धन रखने का भाव यह है कि मैं सत्कार विच भेटा नजराना रख रहा, मैं भेटा रख रहा हाँ। जदों असीं मत्था टेकिया तो साडा शरीर भी जिहड़ा है मन वो भी भेटा हो जाता है। जदों गुरु अगे झुक गया, धन रखिया तो धन भी भेटा है। पर इस तो अगे की जिहड़ी कहानी है, जदों आपां गुरु साहब नूं परिक्रमा करते हैं तो इसका भाव यह होता है, गुरु साहब जी मैं तुहाडे तो बलिहारे जाना, सदके जाना, कुर्बान जाना, तुहाडे तो वारने जाना। आपां परिक्रमा करते हैं, मैं तुहाडे तो कुर्बान जाना, बलिहारे जाना, सदके जाना, वारने जाना। इनका भाव यह होता है। हुण जदों सिख आया तो उन्हें अपना तन भी गुरु अगे रखिया, धन भी रखिया, पर एक चीज़ नहीं रखता जिंदा जिक्र गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कर रहे हैं, वो है मन। मन नहीं रखता। इस करके इनका संबंध
ਵੇਖੋ दो गग्गे ने, एक गोलक ते दूजा गुरु। गोलक तक तो हर कोई पहुंच जाता है, गुरु तक कोई विरला ही पहुंचता है। गोलक तक तो शरीर पहुंच गया, धन भी पहुंच गया, तन भी पहुंच गया, पर मन नहीं पहुंचया। मन असल दे विच गुरु तक पहुंच जावे तां असल दे विच गुरु दा हुक्म मन के ते उस मालिक की प्राप्ति हो सकती है। तां मेरे साहब आखदे ने, तन मन धन सब सौंप गुर को। केवल तन ही ना अगे महाराज के झुकाया कर, केवल धन ही ना अगे रखिया कर, अपना मन भी रखिया कर। कदी मन की भेटा रखी है? रब्बी बाणी में एक बड़ा प्यारा बचन आता है भगत कबीर साहब का। तो भगत कबीर साहब आखते हैं कि जे कोई मनुख सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करके, सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करके ढेर ला के ते इस तरह रख दे, ढेर ला के ते आखे भी मैनू रब की प्राप्ति हो जाए, महाराज कहेंगे कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। जे इस तरीके नाल प्राप्ति होती तो फिर जिन्ने अज दुनिया में अमीर ने ना, सब तो पहला रब उन्हां कोल होना सी। फिर गरीब बंदा कभी रब की प्राप्ति ना कर सकता। फिर अमीरां कोल रब होना सी, गरीबां कोल नहीं। पर यह विशा जिहड़ा है वो बड़ा ही डूंगा है। कबीर साहब आखते ने, कंचन स्यों पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। जदों रब मिलेगा उदों मन अगे रखना पएगा। रब की प्राप्ति तां होवेगी, पदार्थां नाल रब की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई किन्ना भी वड्डा कोई राजा बादशाह आ जाए तो आखे मैं इन्नी दौलत अगे रख देना तो मैनू रब की प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये भुलेखा ते भरम है। तो आपां दो चीज़ां अगे भेटा कर दित्तियां, तीजी आपां नहीं करते। साहब आखदे जिदन तीजी करेगा तो हुक्म मनेगा, हुक्म मनेगा ही उस दिन जिदन तीजा मन भी अर्पण कर देगा। हुक्म मनेगा ही उस दिन। हुक्म की है? हुक्म की असी एक शब्द वरतते हैं भी संसार दे विच जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा के हुक्म विच हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है सब परमात्मा के हुक्म विच हो रहा है। तो फिर एक सवाल और खड़ा हो जाता है, जे रब के हुक्म विच ही हो रहा है तो फिर मनुख दोषी क्यों है? फिर उन्हें जेलों में क्यों बंद किया जाता है? फिर सज़ा क्यों दी जाती है? जे रब के हुक्म विच ही सब हो रहा है तो फिर मनुख को दोषी क्यों ठहराया गया? उन्होंने ये क्यों आख्या भी तू गुनाह किया है, तू पाप किया है, तू जुल्म किया है, क्यों आख्या गया? जे दोषी मनुख है तो फिर रब का हुक्म की होया? जे आप मान लीए भी सारा कुछ रब के हुक्म विच है, फिर तो चंगा भी तो मंदा भी सब रब के हुक्म विच हो रहा है। तो अपराध करने वाला बंदा आखेगा मैं थोड़ा किया, रब के हुक्म विच हो रहा है, जिवें रब ने कराया मैं कर लिया। तो फिर तो रब के हुक्म विच है। फिर आप संसार के लोगों को दोषी क्यों ठहराने? जे असी दोषी ठहराने फिर रब का हुक्म की होया? ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। बड़ी कृपा की गुरु साहब ने साडे ते इस गल का जवाब सानू दिता। इस गल का जवाब सानू महाराज ने दिता। पहली गल तो गुरु ने यह समझा दी भी ये गल सच है भी सब हुक्म दे विच है, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, सब कुछ उहदे हुक्म विच है। पर पहली गल उस मालिक ने तेनू खेती दिती है, दूसरा उन्हें तेन बीज भी दिता है, तीसरा फिर कह लगे उन्हें गुरु रूपी यूनिवर्सिटी जी खोल के दी है। हुण गुरु तो तू पूछना है भी महाराज मैनू ये दसो भी मेरे को शरीर रूपी खेत भी है तो मेरे को नाम रूपी बीज भी है, पर मैं बीजना कदों है? जेड़ी फसल किसान बीजदा है, जे अगर वो सही समय ते ना बीजी जाए तो वह उगेगी नहीं, जे उगेगी तो उन्होंने फल नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समा एक रुत होती है। मेरे साहब आखते ने नाम बीजण का भी एक समय है। ये नाम कदों बीजा जाए जो तेन रब के हुक्म की समझ आ सके। तो बड़ी कृपा की गुरु साहब ने पहली गल समझाई
खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। ये तेरा शरीर रूपी खेत है। एक गल याद रखी, जो तू इहदे विच बीजना है, अंत नूं तू वड्ढना है। जो तू बीजेगा वो तू वड्ढेगा। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। हुण खेत जिहड़ा शरीर है, ते महाराज ने नाल फिर एक गल होर दसी है कि जिहड़ा नाम है वो है बीज। पर अगली गल दस दी कि ये बीजना कदों है। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही मत भरम भूलो भूलो। कह लगे हुण ये कले रूपी समा आ गया है। ये समा है मनुखा जन्म जदों मिलिया ना, मनुखा जन्म मिलन का मतलब है भी तू हुण सही समय तेरे कोल नाम रूपी बी बीजण दा। पशुओं को अवसर नहीं है, पशुओं को समर्था नहीं है। इस करके ज्ञान जो है वो जिन्ना भी है मनुखता वास्ते है, पशुओं वास्ते नहीं। पशुओं को ज्ञान जिहड़ा है वो नहीं दिता जाता, पशुओं को नहीं पढ़ाया जाता, इंसानों को पढ़ाया जाता है, मनुखा को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनू जीवन की समझ लग सके। तो मेरे गुरुदेव आखते ने जिदण तेनों इस गल की समझ लग गई कि भी ये शरीर रूपी खेत है, जदों मैनू मिलिया तो इस खेत रूपी शरीर विच, इस कलयुग की संसार विच मैं परमात्मा का नाम बीजना है। अगली गल गुरु साहब आखते ने जदों तू नाम बीजेगा तो इहदा मतलब है भी फसल भी चंगी होगी। पर इत्थे होया कि इत्थे जिहड़ी है उल्ट कहानी हो गई। हालांकि मनुख ने गुरु नूं समझा दिता कि एक स्वतंत्रता मनुख नूं आज़ादी ये दे दी भी बाकी सारा कुछ तो हुक्म विच है। खेत भी तेनों हुक्म विच मिले, ये शरीर सानू रब दे हुक्म विच मिले, परमात्मा का नाम जिहड़ा है वह भी हुक्म विच है, गुरु का उपदेश वो भी हुक्म विच है। ये सारा कुछ है हुक्म विच। पर नाल एक गल समझा दी भी तू बीजना की है ते कदों है, इस गल की तेनों समझ आ जाए तू गुरु कोलों ज्ञान लै। हुण गुरु ने तो आख्या भी नाम रूपी बी बीजना, पर इन्हें बीजिया कि ये तो घाह फूस बीज के बैठा हुआ, ये विषय विकारां बीज के बैठा हुआ, चंगी चीज तो इन्हें बीजी नहीं हमेशा। हुण गुरु साहब आखदे ने भी ये बीजदा की है, बीजै बिख मंगै अमृत। कह लगे बीजदा जहर है ते मंगदा अमृत है। हुण जे कोई मनुख जेड़ी चीज बीजेगा आखिर नूं प्राप्त फल तो वही मिलना है। अगर कोई निंदिया बीज रहा है, कोई चुगली बीज रहा है, कोई झूठ बीज रहा है, कोई ठगियां पाप बीज रहा है, कोई बुरे कर्म बीज रहा है, तो इहदा मतलब उन्होंने वो कुछ ही मिलना है। तो जे कोई मनुख चंगी चीज बीज रहा है, कोई नाम बीज रहा है, कोई सत्संग विच आके प्रभु का सिमरन कर रहा है, कोई परमात्मा की कथा सुन रहा है, कोई कीर्तन सुन रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई दुनिया में चंगी सेवा कर रहा है, चंगे काम कर रहा है, भला कर इहो जिहे कर्म कर रहा है, तो चंगी खेती बीज रहा है। तो सुभाविक गल है आने वाले समय में गुरु नानक साहब पातशाह आखदे ने आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। तू आपे ही बीज ते आपे ही वट। जे चंगी फसल बीजेगा तो तेनों उनका चंगा मिलेगा, तो जे तू माड़ी फसल बीजेगा, घाह फूस बीजेगा, तो फिर मिलना भी घाह फूस ही है। चंगी चीज तो नहीं मिलेगी, तेनों चंगी चीज तो प्राप्त नहीं हो सकती। तो महाराज आखदे हर चीज हुक्म दे विच ही है। बस जिदण तेनों समझ आ गई ना मैं की बीजना ते की नहीं बीजना, बस उदों तेरा जीवन जिहड़ा बदल जाएगा। हुण एक गल होर समझण वाली है, दुनिया के अंदर जिन्होंने लोगों ने पहला हुक्म मन्निया फिर उन्होंने हुक्म मनाया, जेड़े हुक्म मनते नहीं ना उन्हों का दुनिया में हुक्म मन्निया भी नहीं जाता। जेड़े बचपन के माँ बाप का हुक्म मनते हैं, थोड़े वड्डे हुए फिर अपने उस्तादां टीचरां का हुक्म मनते हैं, फिर एक दिन बहुत उच्चे मुकाम पर पहुँच जाते हैं, फिर वो लोगों तो हुक्म मनाना शुरू कर देते हैं। अज जिन्ने भी लोग ने ना वड्डे अहुदियां ते बैठे हुए ने, कदे ना कदे इन्होंने हुक्म मन्निया सी। अज वो जे बैठ के हुक्म करते हैं तो उन्हों का हुक्म मन्निया जाता है। एक अफसर है जिन्हें कोल चंगी डिग्री है, बैठा हुआ है, तो वह जो हुक्म करता है उहदे हुक्म की पालना होंदी है। पर जे किते जो उन्हें बोलिया, जो हुक्म उन्हें किया, एक आम मनुख मेरे वर्गा सड़क पर खलो के आखे किसी ने, तो किसी ने मनना थोड़ा।
जे कोई आम बंदा उही गल करे तो कोई नहीं मन्नेगा, पर जे उही गल कोई वड्डे अहुदे ते बैठा होया मनुख करे तो उनकी गल नूं उसे वेले मन्निया जाएगा। क्यों? उन्हें हुक्म नूं मन्निया हुंदा है, उन्हें हुक्म नूं कमाया हुंदा है, इस करके हुक्म जदों करदा है फिर उहदे हुक्म नूं मन्निया जाता है। धर्म की दुनिया विच भी कुछ इस तरह का है, जेड़े लोग गुरु का हुक्म पहला मनते हैं, जेड़े परमेश्वर का हुक्म मनते हैं, फिर असल दे विच उन्हां दा भी इस संसार के अंदर रब भी हुक्म मनता है ते गुरु भी उन्हां दा हुक्म मनता है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया। भाई गुरदास जी आदि ने सतगुर चरण शरण चल जाए सिख। जिहड़ा सिख है ना, अगर वो रोज गुरु के चरण कमलों में चल के आंदा है, शरण में चल के आंदा है, तो की है कह लगे ता चरण शरण जगत चल आवई। ऐसे मनुख की इन्नी उच्ची अवस्था हो जाती है कि जगत फिर उनके चरणों में आके ते अपना सीस झुका देता है। जेड़ा मालक के चरणों अगे सीस झुकाउंदा है, फिर जगत उनके अगे सीस झुका देता है। आप इतिहास विचों एक घटना ले लीए। जेड़े बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज चरणों में आके 7-8 साल तक हुक्म मनते रहे, और बड़े प्यारी जे किते हुक्म की गल जिहड़ी है वो सीखनी होवे ते सानू बाबा लहणा जी के जीवन विचों सीखनी चाहिए है। रात का समय ते गुरु नानक साहब पातशाह जी ने पावन बचन आखिया बाबा बुढ़ा जी। कभी बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब जी ने एक सवाल किया, कह लगे सतगुरु तुसीं समर्थ हो, पर मैं एक गल पूछनी चाहुंदा हां, बेअंत सिख ऐसे ने जेड़े तुहाडे चरणों में बहुत पहला तो ने, बहुत पहला तो। बाबा बुढ़ा जी भी जेड़े तकरीबन 12-13 साल की उम्र गुरु नानक साहब के सिख बन गए सन। ऐसे होर बेअंत सिख सन। सतगुरु जी वो बेअंत सिख ने जेड़े तुहाडे चरणों में बहुत पहला तो आए ते सेवा कर रहे हैं, पर तुसीं बाबा लहणा जी नूं इन्ना प्यार क्यों करते हो? जदों आप वेखते हैं भी बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, पर टीचर का एक बच्चा जोड़ा बहुत प्यार वाला होता है, बहुत प्यार करता है। उनका कारण यह है भी वो अपने टीचर की हर एक गल मनता है। जदों गुरु नानक साहब जी ने एक सवाल किया भी सिख तो होर भी बहुत ने तुहाडे चरणों में, पर बहुत प्यार तुसीं बाबा लहणा जी नूं क्यों करते हो? तो गुरु नानक साहब पातशाह कह लगे भी समा आएगा तो फिर दसांगे। रात का समा होया ते बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब जी ने उठाया, कह लगे भी बाबा बुढ़ा जी कह लगे भी समा हो गया, जल लियाओ तो असीं इशनान करना है, अमृत वेला हो गया। हुण बाबा बुढ़ा जी बाहर निकले, उन्हें आख्या सतगुरु नहीं, अजे तो रात का दूजा पैर ही जिहड़ा चल रहा है, अजे तो दूजा पैर चल रहा रात का सतगुरु, अजे अमृत वेला नहीं होया। साहब कह लगे ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर उठाया, कह लगा सतगुरु अजे तीजा पैर चल रहा, अजे चौथा पैर नहीं होया, अजे तीजा पैर चल रहा। गुरुदेव पातशाह जी जदों ये बचन आखिया तो हुण गुरु साहब ने बाबा लहणा जी ने बुलाया, तो बाबा लहणा जी ने जदों बुलाया तो आखिया, कह लगे भी जल लियाओ इशनान करना है, कह लगे सत बचन। हुण बाबा बुढ़ा जी बाबा लहणा जी नूं आखदे ने भी तुहानूं पता नहीं अजे तो तीजा पैर शुरू होया, चौथा पैर जे आरंभ नहीं होया, अमृत वेला जे होया नहीं, अजे तो रात बड़ी पई है। तो उदों फिर बाबा लहणा जी ने अगों आख्या मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे गुरु का हुक्म है भी दिन चढ़ गया। जे मेरा गुरु ये भी आखे ना भी दिन है, रात नूं आखे दिन है तो दिन है, जे दिन विच भी मेरा गुरु कह दे रात है तो मैं रात स्वीकार कर लवांगा। इन्नी भावना अंदर, इन्ना हुक्म मनदे सन गुरु का कि मेरे गुरु का हुक्म है। कई कहानियां आप पढ़ते हैं तो उन्होंने आप बड़े गलत तरीके दे नाल बयान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब कितनी कहानियां आईयां ने तो आप हमेशा उन्होंने कहने भी नहीं ये तो कर्म कहानियां, असीं होर शब्द वरतते हैं, नहीं ये तो एवं ही ने, असीं उन्होंने गलत कह देने। पर नहीं प्यारे, जे गुरु अमरदास पातशाह आखदे ना कथ की कहानी, तो गुरु ग्रंथ साहिब आईयां हुई कहानियां ये अजाई नहीं, इन्हां दा कोई भाव अर्थ है कोई मीनिंग है। कवि संतोख सिंह ने एक बड़ी प्यारी लिखी सी घटना, वो कह लगे गुरु नानक साहब ने आख्या सी अपने पुत्रां नूं भी दरख्त हिलाओ मठियाइयां डिगणगियां, पर पुत्रां ने आख्या भी पिता जी किहो जी गल करदे, हुण बुजुर्ग हो गए, लगदा तुसीं तुहानूं इन्ना नहीं पता दरख्तां तो फल तां डिगदे ने पर मठियाइयां कदी नहीं डिगियां।
ਸਾਹਿਬ ने बाबा लैणा जी ਨੂੰ आख्या, कह लगे भी दरख्त हिलाओ, मठियाई डिगेगी। बाबा लैणा जी उस वेले सत बचन कह के तुरन लगे। तो उदों गुरु नानक साहब के पुत्रा ने आख्या भी मेरे पिता जी जिहड़े ने साडे ते बुजुर्ग हो गए ने, पर घट्टो घट्ट तुहानूं ते पता है, समझिया भी कभी दरख्तां तो मठियाइयां डिगियां ने। पर अगों बड़ा प्यारा जवाब दिता बाबा लैणा जी ने, कह लगे असल विच मेरा मकसद सिर्फ इन्ना है, अपने गुरु के हुक्म नूं मनना। मैं दरख्त नूं हिलाउणा आ, मेरे गुरु ने आख्या दरख्त नूं हिलाओ, मठियाई डिगे या ना डिगे मैनूं उहदे नाल कोई संबंध नहीं, उहदे नाल कोई मतलब नहीं। मेरे गुरु का हुक्म है, मैं दरख्त नूं हिलाउणा है, भावें फल डिगे ते भावें मठियाई डिगे, मैनूं इहदे नाल की मतलब है। तो यह है हुक्म मनण दी गल। साडे हुक्म दे विच तां शंके खड़े ने, सवाल खड़े ने, यह किवें हो सकदा है, यह किस तरह हो सकदा है। पर नहीं, जिथे हुक्म मनण दी गल आउंदी है फिर उत्थे कोई शंका स्वार्थ नहीं। गुरुदेव आखदे ने जिद्दण तू हुक्म मन्नेगा तेनू पता लगेगा, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निए पाइए। हुक्म मन्नेगा तो मिलेगा। बाबा लैणा जी ने हुक्म मन्निया तो गुरु नानक साहब की खुशी मिल गई। इन्नी खुशी मिली कि गुरु साहब ने अपना रूप बना लिया। और 10 पातशाहियां तक जिन्होंने हुक्म मन्निया, गुरु नानक साहब के अपने पुत्रों ने हुक्म नहीं मन्निया कि गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी दात नहीं दी। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी, उन्होंने भ्राता बाबा प्रिथी चंद, उन्होंने गुरु रामदास महाराज का हुक्म नहीं मन्निया तो गुरु साहब ने नहीं गुरगद्दी दी। जिन्होंने हुक्म मन्निया गुरु ने उन्होंने ते कृपा बख्शिश कर दी। तो शंके तो रहत होके, तर्क तो रहत होके हुक्म मनना है। मेरे गुरुदेव आखते ने तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्निए पाइए। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। हे संत जनो, गुरु दे हुक्म दे उत्ते ही चलना है, गुरु दे हुक्म दे अनुसार चलना है। अते गुरु दा हुक्म की है भी सच्चे दी बाणी नूं गाउणा है, सच्चे दी सिफत सलाह करनी है, उस अकथ दे विचार करनी है। ये गुरु का हुक्म है। कहे नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। नानक जी आखते हैं, हे संत जनो कि अकाल पुरख परमात्मा नूं मिल के जो आनंद है, अगर उन्होंने मानना है तो उस आनंद नूं मानण दा जिहड़ा राह है वो ये है कि उस अकथ की सिफत सलाह करया करो, उनकी विचार करया करो, उनकी सिफत सलाह करया करो, तां ही साडा जीवन जिहड़ा सफल होवेगा। गुरुदेव कृपा करन, बख्शिश करन, अपने चरणों नाल सानू सारियां नूं जोड़ के रखण। आपां उस परमपिता परमात्मा प्रभु की सिफत सलाह सदा ही करते रहिए, तां जो साडे सारियां दा लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले वाली अवस्था बन सके। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।